Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss understanding quadrilaterals chapter which is of class 8th. So in earlier classes you have studied about polygons. So what are polygons? Polygons are simple closed curves made up of line segments. Polygons are simple closed curves made up of line segments. So simple closed curves ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਕਲੋਜ਼ਡ ਕਰਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਵ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਿੰਪਲ ਕਰਵ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਪੈਨ ਔਰ ਪੈਨਸਿਲ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕਰਵ ਸਿੰਪਲ ਕਲੋਜ਼ਡ ਕਰਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਵਸ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਡ ਲੂਪ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਗਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਲੋਜ਼ਡ ਲੂਪ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕਲੋਜ਼ਡ ਕਰਵ ਬੋਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਕਲੋਜ਼ਡ ਕਰਵ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਲੀਗਨ ਹੈ ਫॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रायंगल लवां ट्रायंगल जो है वो की है सिंपल क्लोज कर्व क्योंकि इनू आप ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल प्लस ये अपने आप को एक क्लोज लूप बना रही है तो ना ही अपने आप को किसी थां ते कट नहीं कर रही ठीक है अगर मैं गल करा इस तरीके नाल ये जो है अपने को कट कर रही है इस पॉइंट ते ठीक है तो नाल दी नाल एक क्लोज लूप भी नहीं बना रही इस करके ये अपने को सिंपल क्लोज कर्व नहीं है ठीक है अगर सिंपल क्लोज कर्व नहीं है तो लाइन सैगमेंट्स का तो वैसे ही नहीं मिलके बनया तो ना की है पॉलीगन नहीं है जबकि जो ट्रायंगल है अपने को सिंपल क्लोज कर्व भी है तो नाल की है लाइन सैगमेंट्स तो मिलके बनया है दैट मीनस ये की है पॉलीगन है अगर आप गल करिए स्टार शेप की जो स्टार आप शेप देखिए ये अपने कोल एक सिंपल क्लोज कर्व की फिगर ही नहीं बना रही ये सिंपल कर्व ही नहीं हैगा ठीक है तो नाल दे नाले सिंपल क्लोज कर्व नहीं क्योंकि अपने को इंटरसैक्ट कर रहा है पॉइंट्स के उत्ते ते नाल दे नाले कोई क्लोज लूप भी नहीं बना रहे इस करके सिंपल क्लोज कर्व नहीं हैगा एंड ये पॉलीगन भी नहीं हैगा अगर मैं गल करा स्क्वेयर की तो स्क्वेयर अपने को की है एक पॉलीगन है क्यों क्योंकि सिंपल क्लोज कर्व है एक क्लोज लूप भी बन रही है नाले अपने को विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल आप ड्रॉ भी कर सकते हैं दैट मीनस सिंपल क्लोज कर्व है एंड ये लाइन सैगमेंट्स तो मिलके बनया है ठीक है लाइन सैगमेंट अगर आप नाम दे दिए ए बी सी डी सो लाइन सैगमेंट ए बी सी सी डी एंड डी ए लाइन सैगमेंट का मिलके बने है दैट मीनस एक ही है पॉलीगन है नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड कन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन कन्वेक्स पॉलीगन So convex polygon is that in which any line segment joining any two different points or you can say the vertices lie inside or on the boundary of the polygon. So convex polygon says कि convex polygon is a polygon in which any line segment joining the two different points lie either inside or on the boundary of a polygon. For example, let's take a square. Square जो है it has four vertices A, B, C, D. Okay, if I join vertex A and B, I got a line segment on the boundary of the polygon which is a square. Okay, if I join the points A and C, that is the diagonal, it lie inside the square. If I join the point B and D, I got a line segment which is again inside the square. So the polygons
in which the line segments joining any two points lie either inside or on the boundary of the polygon. They are convex polygons. Okay, if I take rectangle, it is also a convex polygon. You can take any two vertices and join them. The line segment that you will get, it will either lie inside the rectangle or it will be on the boundary of the rectangle. ठीक है. So convex polygon में हमारे पास square भी है, rectangle भी है. You can take triangle as well. Okay. So अब हम देखते हैं what is concave polygon. concave polygon जो है वो क्या है कि हमारे पास वो पॉलीगन जिसमें we will draw a line segment joining the two different points and they will lie outside the boundary of the polygon. Maybe they lie outside the boundary of the polygon. ठीक है. convex polygon का उल्टा कि in which any line segment joining any two different points or vertices lie outside the polygon. It will lie outside the polygon. For example, if I draw a shape like this, ठीक है, मैंने ये शेप ड्रॉ की है. इसमें अगर मैं A एंड B को ज्वाइन करूं, ये क्या कर रहा है, ये लाई कर रहा है ऑन द बाउंड्री ऑफ द पॉलीगन. ठीक है. इफ आई ज्वाइन C एंड D, इट विल ऑल्सो लाई ऑन द बाउंड्री. C एंड E करूं, लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ द पॉलीगन. बट इफ आई ज्वाइन द वर्टेक्स पॉइंट D एंड E, ये क्या कर रहा है, इट लाइज आउटसाइड द पॉलीगन. सो अगर आपके पास ऐसा कोई भी दो पॉइंट्स आते हैं जिसको आप जब ज्वाइन करो एंड जो लाइन सेगमेंट आ रही है वो आउटसाइड आ रही है द पॉलीगन, दैट मीन्स कि वो आपका जो पॉलीगन है वो क्या है, कनकेव पॉलीगन है. ठीक है. अगर मैं डायग्राम बनाऊं ऐसी, तो ये क्या है, ये कन्वेक्स है कि कनकेव पॉलीगन है. सिंपली यू कैन सी कि अगर मैं ये दो पॉइंट्स को, वर्टेक्स पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो मेरे पास जो लाइन सेगमेंट आ रही है वो क्या आ रही है, आउटसाइड द पॉलीगन. दैट मीन्स ये भी क्या हुई, मेरी कनकेव पॉलीगन. ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट रेगुलर पॉलीगन्स. सो रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, द पॉलीगन्स whose all sides are of equal length and all angles are of equal measure. That means कि वो पॉलीगन्स जिनकी जो साइड्स होंगी वो सभी क्या होंगी, इक्वल लेंथ की होंगी, एंड जो उनके इंटीरियर एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगन्स. सो अगर ये दो कंडीशंस होल्ड कर रही हैं कि साइड्स जो हैं उनकी इक्वल लेंथ है एंड सभी एंगल्स जो हैं वो इक्वल मेजर के हैं, दैट मीन्स कि वो पॉलीगन क्या है, रेगुलर पॉलीगन. एग्जाम्पल, हमारा स्क्वायर, हमारा जो स्क्वायर है ABCD, इसकी जो सारी साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, सेम लेंथ की. अगर मेरे पास AD जो है उसकी लेंथ A है, देन AB की लेंथ भी A होगी, BC की लेंथ भी A होगी, CD की लेंथ भी A होगी. ठीक है. मैंने लिया कि AB लेट से A मीटर्स है मेरे पास. ठीक है, A मीटर्स. सो मेरे पास BC भी A मीटर की होगी, CD भी A मीटर की होगी एंड AD भी A मीटर की. सारी की सारी क्या होगी, हमारे पास साइड्स की लेंथ सेम. एंड एंगल्स जो होंगे हमारे पास, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, वो क्या होंगे, ईच एंगल इज 90 डिग्री. सो हमारे पास जो सारे एंगल्स हैं वो भी सेम है एंड जो साइड्स हैं वो भी सारी सेम है. दैट मीन्स ये जो हमारे पास स्क्वायर है वो क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन. सिमिलरली अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, whose all sides are equal.
ठीक है। लेट्स से अगर ए बी ए मीटर्स है तो बी सी भी ए मीटर होगा, ए सी भी ए मीटर होगा। एंड ईच एंगल ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा क्या होगा, 60 डिग्री। दैट इज एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी विच इज 60 डिग्रीज। सो ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड द साइड्स दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, दैट मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है। सो रेगुलर पॉलीगन में हमने दो कंडीशंस पढ़ी। पहली हमने पढ़ी कि साइड्स जो हैं दे शुड बी ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, साइड्स की क्या होनी चाहिए, इक्वल लेंथ। एंड सेकंड हमने कंडीशन पढ़ी कि ऑल एंगल्स, बेसिकली द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन शुड बी ऑफ इक्वल मेजर। ठीक है, सभी जो एंगल्स हैं पॉलीगन की वो भी क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। सो जो फर्स्ट कंडीशन है द साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ वाली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं इक्विलेटरल पॉलीगन। इक्विलेटरल पॉलीगन भी हम इसे बोलते हैं। एंड ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगन शुड बी ऑफ इक्वल मेजर, इसको हम इक्वी एंगुलर भी बोलते हैं, इक्वी एंगुलर। दैट मीन्स रेगुलर पॉलीगन्स दे आर ऑल्सो इक्विलेटरल पॉलीगन्स एंड इक्वी एंगुलर पॉलीगन्स। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे इर्रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में। इर्रेगुलर पॉलीगन्स, इर्रेगुलर पॉलीगन्स क्या है, पॉलीगन्स विच आर नॉट रेगुलर, पॉलीगन्स विच आर नॉट रेगुलर पॉलीगन्स। दैट मीन्स कि या तो जो हमारे पास पॉलीगन होगा वो इक्विलेटरल पॉलीगन होगा जिसकी सारी जो साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ की होंगी, या वो इक्वी एंगुलर होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होल्ड कर रही होगी, या फिर हो सकता है दोनों ही ना कर रही हो। ठीक है, सो वो पॉलीगन्स क्या होंगे, हमारे इर्रेगुलर पॉलीगन्स होंगे। एग्जाम्पल रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमने लिया ए बी सी डी। अब जो रेक्टेंगल है उसकी दो साइड्स होती हैं, बड़ी वाली साइड लेंथ एंड छोटी साइड को हम बोलते हैं ब्रेथ। ठीक है, सो ए बी एंड सी डी दोनों हमारे सेम होती हैं। अगर हमारे पास ए बी एल मीटर्स है देन सी डी भी एल मीटर्स है। एंड बी सी एंड ए डी दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। अगर ये बी मीटर्स है बी सी देन ए डी भी हमारी क्या होगी, बी मीटर्स। सो दैट मीन्स हमारे पास जो सारी की सारी जो साइड्स हैं दे आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ, दैट मीन्स ये इक्विलेटरल पॉलीगन तो नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनके एंगल्स को। सो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ये चारों के चारों क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। दैट मीन्स कि जो एंगल्स आ रहे हैं वो तो हमारे क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। दैट मीन्स ये इक्वी एंगुलर है। रेक्टेंगल क्या है, इक्वी एंगुलर तो है बट इक्विलेटरल नहीं है। दैट मीन्स उसके जो साइड्स हैं वो सारी इक्वल नहीं है बट एंगल्स इक्वल है। ठीक है, एंड दैट इज वाई इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेगुलर पॉलीगन्स। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, रोम्बस। रोम्बस की शेप आपने देखी होगी, कुछ इस तरह से रोम्बस की शेप होती है, ए बी सी एंड डी। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे, बट रोम्बस जो इरेगुलर पॉलीगन कैसे है, क्योंकि जो रोम्बस है इसकी जो सारी की सारी साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल। अगर ए बी हमारा ए मीटर्स है देन बी सी भी ए मीटर, सी डी भी ए मीटर एंड ए डी भी ए मीटर। दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। दैट मीन्स ये क्या एक इक्विलेटरल पॉलीगन है, इक्विलेटरल पॉलीगन ये हमारा है। बट जो एंगल्स हैं हमारे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, दे आर नॉट इक्वल। दैट्स वाई ये इक्वी एंगुलर नहीं है, इक्वी एंगुलर ये पॉलीगन नहीं है बट इक्विलेटरल पॉलीगन है ये, क्योंकि इसके सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। दैट मीन्स रोम्बस भी क्या हुआ हमारा, एक इरेगुलर पॉलीगन। नेक्स्ट टॉपिक इज सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन।
मैंने एक पॉलीगन यहाँ पे ड्रॉ किया है ABCDE। सबसे पहले हम रिजल्ट जानते हैं कि क्या होता है कि सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन का जो हमारे पास जो उनके जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उसका सम हमेशा क्या होगा 360 डिग्री। ये क्या हमारा एक रिजल्ट। एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, जो कि हमारे बाहर लाई करेंगे पॉलीगन के, वो होते हैं एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल जो कि पॉलीगन के अंदर लाई करेंगे, वो इंटीरियर एंगल्स। ये देखो मैंने एक पॉलीगन बनाया है ABCDE, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने AB की तरफ हम मूव किए एंड मैंने AB को क्या किया, एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। AB को मैंने एक्सटेंड किया, यहाँ से मैंने BC को एक्सटेंड किया, CD को एक्सटेंड किया, DE को एक्सटेंड किया एंड देन EA को मैंने अगेन क्या किया है, एक्सटेंड किया है। विद द हेल्प ऑफ D, जो आपने अर्ली क्लासेस में देखा होगा, जिस लाइन को हमने एक्सटेंड किया है और जो हमारा वर्टेक्स पॉइंट है A, वहाँ पे हम जो है इसका सेंटर रखेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम इसका क्या रखेंगे, सेंटर रखेंगे, लाइन के ऊपर लाइन, एंड एंगल मेजर करेंगे। यहाँ पे हमने रखा एंड जो हमारे पास AB आ रहा था, हमने एंगल मेजर किया, क्या आ रहा हमारा 120 डिग्री एंगल आ रहा है। अगेन हमने क्या किया, एक्सटेंड किया था AB को, जो लाइन एक्सटेंडेड वो ये है। तो मैंने क्या किया, इस वर्टेक्स पॉइंट पे मैंने इस सेंटर के पॉइंट को रखा एंड अब हम इसे एडजस्ट करेंगे। तो हमारा एंगल क्या बन रहा है, जो BC है वो एंगल क्या बना रहा है 40 डिग्री। जो एक्सटीरियर एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे 40 डिग्री। सिमिलरली आप ये एंगल फाइंड कर लो, यहाँ पे C पॉइंट पे, वर्टेक्स पॉइंट पे आप इसका सेंटर रखो एंड एडजस्ट करो प्रॉपर एंड लाइन को मेजर करो। ये 90 डिग्री पे दिखा रहा है। सिमिलरली यू कैन मेजर दिस एंगल जो कि आपका 50 डिग्री आएगा एंड ये वाला एंगल जो कि आपका 60 डिग्रीज आएगा। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, हम देखते हैं 120 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री। जब आप इसका सम करोगे तो आपके पास क्या आएगा 360 डिग्री। ये क्या हो गया आपका प्रूफ। सिमिलरली आप कोई भी पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हो, देन विद द हेल्प ऑफ D आप उसके एक्सटीरियर एंगल्स को मेजर करो एंड जो सम आएगा आपका एक्सटीरियर एंगल का वो हमेशा क्या होगा 360 डिग्री। अगर यहाँ पे कोई एक पॉइंट होता, लेट्स से यहाँ पे O, यहाँ पे हमारे पास होता है एक M, यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट होता है N, यहाँ पे हमारे पास होता लेट्स से P एंड यहाँ पे कोई पॉइंट है Q लेट्स से। हमारे पास क्या होगा, एंगल OAB प्लस एंगल हमारे पास एंगल OAB प्लस एंगल MBC प्लस एंगल NCD NCD के बाद हमारा क्या आएगा, एंगल PDE प्लस एंगल QEA। ये क्या बनाएगा 360 डिग्री। ये क्या है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स हैं हमारे इस पॉलीगन के, ठीक है। हमारे पास OAB क्या है, एंगल OAB 120 डिग्री। एंगल MBC क्या है हमारे पास, MBC विच इज 40 डिग्री। एंगल NCD क्या है हमारे पास 90 डिग्री। एंगल PDE 50 डिग्री। देन एंगल QEA विच इज 60 डिग्री। सबका सम क्या आएगा हमारे पास, हमेशा 360 डिग्री आएगा। आप किसी भी और पॉलीगन को ड्रॉ करो, विद द हेल्प ऑफ D आप उसके एक्सटीरियर एंगल्स को मेजर करो एंड देन आप उसे ऐड करके देखो, हमेशा आपके पास आंसर क्या आएगा 360 डिग्री। एंड आपको ये लाइन पता ही है कि हमारे पास अगर एक लाइन गिवन है, ठीक है, और इस तरीके से आपको अगर गिवन है, तो जब आपका लीनियर पेयर बनता है
तो आपके पास एंगल क्या होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या बनाएगा 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। लेट्स से हमारे पास एक कॉमन वर्टेक्स पॉइंट है O, हमारे पास जो दो आर्म्स हैं वो क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन के अंडर आ रही हैं, एंड ये हमारे पास कॉमन आर्म है, ठीक है ना। सो जो एंगल बनेगा हमारे पास वो क्या आएगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर हमारा एंगल बनेगा। सो दैट मीन्स अगर आपको एंगल OAB पता है 120 डिग्री, दैट मीन्स आप ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज 60 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। 120 प्लस 60 क्या होता है 180 डिग्री। सो लीनियर पेयर हमेशा क्या बनेगा 180 डिग्री। सिमिलरली अगर आपको 40 डिग्री आपको एक्सियल एंगल पता तो आप ये एंगल पता कर सकते हो, दैट इज 140 डिग्री। 180 माइनस 40 140 डिग्री। सिमिलरली आप ये एंगल फाइंड कर सकते हो, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 130 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री, ठीक है। सो अगर आपको एक्सटीरियर एंगल पता है तो आप इंटीरियर एंगल को भी पता कर सकते हो। दैट मीन्स इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन प्लस एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट इंटीरियर एंगल ओनली, वो क्या बनाएगा 180 डिग्री बनाएगा लीनियर पेयर की मदद से, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट इंटीरियर एंगल ओनली आप उसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हो। अगर मैं 60 डिग्री मेरे पास इंटीरियर एंगल अगर गिवन है, अगर मुझे एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो मैं 60 डिग्री का ही एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकती हूँ, ठीक है। सिमिलरली अगर एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो मैं इस एक्सटीरियर एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल को फाइंड कर सकती हूँ, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कुछ पॉलीगन्स एंड उनके साइड्स। सो जो हमारे पास जो ट्रायंगल होता है, ये जो है पॉलीगन है जिसकी क्या होती हैं 3 साइड्स होती हैं। देन हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी हमारे पास कितनी साइड्स होती हैं 4 साइड्स होती हैं। इस क्वाड्रिलेटर में आपके पास स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, काइट शेप, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, ये सब कुछ आ जाता है। देन हमारे पास 5 साइड्स वाला पेंटागन, 6 साइड्स वाला हेक्सागन, 7 साइड्स वाला हेप्टागन या सेप्टागन, हेप्टागन या फिर सेप्टागन, 8 साइड वाला ऑक्टागन, 9 साइड वाला नोनागन, 10 साइड वाला डेकागन, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जो हमारी ये पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन जो ये हैं, इनके जो ईच इंटीरियर एंगल प्लस ईच एक्सटीरियर एंगल प्लस ऑल साइड्स, ये क्या होते हैं इक्वल होते हैं। दैट मीन्स ये हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन्स हैं। ये क्या हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन्स हैं जिनके हमारे पास इंटीरियर एंगल्स भी सेम हैं, सारे एक्सटीरियर एंगल्स भी सेम हैं, एंड जो सारी की सारी साइड्स हैं वो भी क्या है हमारी इक्वल हैं। सो अगर आपको कभी भी कोई रेगुलर पॉलीगन गिवन है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हो। लेट्स से मुझे एक रेगुलर पॉलीगन पेंटागन गिवन है, ठीक है, एंड उन्होंने मुझे कहा है आई हैव टू फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। तो कैसे हम फाइंड करेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पेंटागन क्या होती हैं? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पेंटागन हमारे पास होती हैं 5। सो क्या करोगे आप, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन जो कि हमें पेंटागन गिवन है मल्टीप्लाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये फॉर्मूला कुछ अलग नहीं है, ये फॉर्मूला जो हमने पीछे पढ़ा, सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री, ये वहीं से ही निकल के आया है। वहाँ पे हमारे पास सभी एंगल्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, सारे के सारे जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो सेम होंगे, क्योंकि एंड हमारी जो साइड्स हैं, ठीक है, वो हमें गिवन होंगी, तो इसीलिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।
सो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन क्या है 5 मल्टीप्लाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। 5 को आप यहाँ पे डिवाइड कर दो। सो जो ईच एक्सटीरियर एंगल है वो कितना होगा 360 डिग्रीज अपॉन 5 72 डिग्रीज। मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा मेरे पास 72 डिग्रीज। सो अगर मैं 72 डिग्रीज को नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन विच इज 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 360 डिग्री अगेन आ जाएगा। ठीक है। सो इस चीज़ की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए आप अगर आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो आप साइड्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको साइड्स गिवन है तो आप एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हो। और अगर आपको इंटीरियर एंगल फाइंड करने को कहा है देन यू नो कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल वो हमेशा 180 डिग्री होता है बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर। ठीक है। सो एक्सटीरियर एंगल आपको पता है 72 डिग्री। सो इंटीरियर एंगल विल बी each interior angle will be 180 minus 72 degrees 108 degrees। सो हमारे पास इंटीरियर एंगल भी आ गया 108 डिग्री एंड एक्सटीरियर एंगल आ गया 72 डिग्री फॉर पेंटागन। सो इन दिस वीडियो हमने पढ़ा रेगुलर इरेगुलर पॉलीगन्स के बारे में, कन्वेक्स कनकेव पॉलीगन्स के बारे में, देन हमने सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन के बारे में पढ़ा, साइड्स ऑफ पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।